Assalamualaikum. Welcome back to my channel. You all are watching Rosie Chaudhary, a second year MBBS student in Samarkand State Medical University, Uzbekistan. And today, this video will be so interesting because I am gonna make a Q&A video जिसमें कि I'll answer all your questions that you ask on YouTube or Instagram. If you still have left some questions after this video, you can ask in comment section. As always, I'll reply inshallah. When I just reached 1k subscriber, I actually decided to make this video at that time, बट बिकॉज ऑफ आलकस मैंने नहीं बनाई. सो एज अ स्टूडेंट ऑफ माई यूनिवर्सिटी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर दो टाइप्स के स्टूडेंट हैं, लाइक हु वांट टू टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी एंड हु आर ऑलरेडी इन दिस यूनिवर्सिटी आस्किंग मेनी क्वेरीज like for exams, but those who want to take admission, asking for admission. So first of all, I'll clear all your doubts who are in this university, and at the end I'll take the queries of those who want to take in this university. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो ही इज आस्किंग के FMG लेवल की एनाटॉमी पास करने के लिए डू वी नीड एनी एक्स्ट्रा सोर्स और इज इट इनफ फॉर द यूनिवर्सिटी स्टडी. सो ऑफ कोर्स 100% यू नीड एक्स्ट्रा सोर्स. यूनिवर्सिटी स्टडी से काम नहीं चलेगा. ये लोग उतना ही पढ़ाते हैं जितना कि इनको एग्जाम लेने में इजी हो. इन एग्जाम्स देयर इज 100% व्हाट दे टोल्ड यू. मतलब अगर यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं तो 100% वही सिलेबस आता है, वही टॉपिक्स आते हैं जो ये पहले पढ़ा देते हैं, बाहर से या फिर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आता. सो इफ यू आर इन बिगनिंग लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर or maybe in third year, you can start from cerebellum if you have enough time, because cerebellum consists of very detailing. They actually taught you in detailing from basic, but in prep ladder there is everything just which is important for FMG level, not from basic, but only those which is important for FMG level. So if you are above than like fourth year, fifth year, sixth year, you can use prep ladder. Or if you are in first, second or third year and if you want to study in detail, then use cerebellum. And right now I am using prep ladder क्योंकि मेरे पास cerebellum का source नहीं है. You actually got the videos on Telegram for 1500 or 2000 rupees. There are source every seniors know here, so you can got that videos on Telegram from your seniors. So next question is such that कि he is saying कि hostel में पढ़ाई नहीं होती और limited tables हैं. तो of course if you are living in hostel there are a lot of like more than 400 and 500 students. तो इतने लोगों में पढ़ाई होना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड होता है. फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यू कैन टेक द फ्लैट, उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. बट आई डोंट थिंक सो कि हॉस्टल में इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है कि बिल्कुल पढ़ाई ना जाए. Like you can study in hostel also, there are study rooms, but you have to balance or you have to just tackle your situation by your own. I don't know what's happening to you, so you have to tackle these conditions by your own. Of course आप abroad में रह रहे हो, अपने घर से दूर हो, तो ये चीजें तो परेशानी आनी तो मस्ट है. So next question is content creation guide. When someone is watching your video, they do not want to know you personally. वो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी भी चीज से. आई नो आई ग्रो दिस चैनल, मैं समरकंद के नाम से ही मेरा चैनल ग्रो हुआ है. इफ यू आर स्टार्टिंग एनी यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इस चीज का ध्यान रखना, कोई ऐसा कंटेंट लेना कि जिसको कि पब्लिक देखना चाहे, दे वांट टू गैदर द नॉलेज. वो आपको पर्सनल कंटेंट क्रिएशन से आई डोंट थिंक ये काम करेगा. उसके लिए तो बहुत लंबा चलेगा, बहुत टाइम लगता है ग्रो करने में. बट स्टार्टिंग से आई थिंक आप कोई ऐसा यूट्यूब चैनल चूज करो जिसमें कि आप नॉलेज प्रोवाइड करो. लाइक अब जब अब सबको पता चल गया है तो अब मैं घर जाऊंगी, पर्सनल व्लॉग्स एक्चुअल में अब बनेंगे कि लोगों को पता चलना चाहिए फ्रॉम वेयर आई बिलोंग. एंड एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूपी, उत्तर प्रदेश. वैसे मेरा एटीट्यूड यहाँ पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि नो वन गोना आस्क me any personal question and it's better and it's best. Thank you so much to all are watching my videos, और आप जो दुआ देते हो उसके लिए भी thank you so much. And I know I don't want to be in extra communication or extra interaction with anyone. अगर मैं किसी को नहीं जानती तो मैं उससे फालतू नहीं बोलूंगी, and even अगर मैं जानती भी होंगी तो भी मैं कम ही बोलूंगी. तो जो भी ये चीज बोलते हैं कि मुझ में एटीट्यूड है, आई एम ओके विद माई पर्सनैलिटी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि इसमें मैं एक लाइन बोलूंगी कि चर्चे आम हो तो किससे भी जरूर होते हैं और उंगलियां उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं. तो अभी तक मैंने ऐसा मौका नहीं दिया है वो उंगली उठाएं. इट नॉट सीम्स लाइक दैट. आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन. नाउ फॉर द क्वेश्चंस जो कि इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं,
दोज क्वेश्चन, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं वो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनको उसी टाइम पे रिप्लाई कर देती हूँ। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द एडमिशन स्टार्ट। गाइज ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है लिटरली कि एडमिशन कब होंगे, एडमिशन कब होंगे। तो फेब इनटेक में बहुत कम स्टूडेंट्स आए थे, आई नो, लेकिन सितंबर इनटेक के एडमिशन कभी भी स्टार्ट होंगे। आई विल लेट यू नो ऑन यूट्यूब, पोस्ट, शॉर्ट्स, वीडियोस, हर चीज से मैं बताऊंगी। एंड ऑन इंस्टाग्राम तो एडमिशन प्रोसीजर वगैरह जो भी है मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगी। कि मैं सच ही बोलती हूँ, मेरे से नहीं झूठ बोला जाता कॉन्ट्रैक्टर वगैरह के बारे में। तो आई नो कि कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, तो मैं आपको वही चीज बताऊंगी कि जिससे आपके पैसे बचे। तो डोंट बिलीव इन दो सच कॉन्ट्रैक्टर्स। आई नो यू केम टू मी लाइक इंस्टाग्राम डीएम एंड यू सेड कि मेरी कंसल्टेंसी वो थी, आपका पैकेज बहुत सही है। तो एडमिशन लेने के बाद डोंट टेल मी कि मेरी कंसल्टेंसी वो थी, मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूं। तो स्टार्टिंग से ही आई एम गाइडिंग यू कि जो मैं बोलूं, इफ यू वांट टू बी लाइक योर एडमिशन टू बी स्मूथ, तो मे बी अगर आप मेरे हिसाब से चलो तो वो अच्छा रहेगा। बाकी इट्स योर चॉइस। तो जब भी सितंबर इंटेक स्टार्ट होंगे आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। एंड डूइंग लाइव वीडियोस, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, फिर वीडियोस में भी मैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में या फिर कंसल्टेंसीज के बारे में बोलती हूँ कि आप भरोसा नहीं करना। तो सेकंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन यही है कि आपकी कंसल्टेंसी कौन सी थी, या फिर व्हाट्स योर जर्नी। तो मैंने इतना बता रखा है कि मैं पहले कजाकिस्तान गई थी, देन समरकंद में आई थी। तो एवरीवन इज जस्ट आस्किंग कि आपकी मतलब क्या स्टोरी थी, आप समरकंद में कैसा है। तो उसका सेपरेट ब्लॉग मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो बहुत लंबी स्टोरी है। जैसे मैं बोलती हूँ कि कंसल्टेंट पे बिलीव मत करना, तो दे आर जस्ट आस्किंग कि हमें कुछ पॉइंट्स बताओ जिससे हमें पता लगे कि ये कंसल्टेंट ठीक है या फिर आप कौन सी कंसल्टेंसी से हो। बाकी मैं एक चीज आपको बता दूं, आई जस्ट हेट द कंसल्टेंट्स की, क्योंकि ये झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। एंड ये चीज यहाँ के स्टूडेंट्स ने एक्चुअली रियलाइज की है, एंड उन्होंने मुझे ये चीज आके बताई है कि एक्चुअली कंसल्टेंट्स ऐसे ही होते हैं। यू नो जब स्टूडेंट यहाँ पर आए तो दे एक्चुअली टोल्ड मी, शी सेड कि अप्पी आप बिल्कुल सही कह रही थी। जब मैं एयरप्लेन में बैठ गई थी सारा प्रोसीजर करने के बाद, उस टाइम आपकी बात मेरे दिमाग में आई थी कि व्हाई यू एक्चुअली हेट द कंसल्टेंट। तो मैंने तो हर चीज बताई है, झूठ बोलने का मेरा नहीं होता क्योंकि इन चीजों से मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, आई नो। तो जो मेरे साथ हुआ है वही चीज मैं आपको बताऊंगी, एंड उसी की नैरेटिव से मैं आपको बताऊंगी कि वो चीज आपके साथ ना हो। तो अबाउट माई स्टोरी, तो मैं अपनी स्टोरी किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। एंड आप कंसल्टेंसी पूछते हो, मे बी इफ इट इज पॉसिबल तो कंसल्टेंसी का नाम भी मैं बता दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके फर्स्ट ईयर फाइनल कब होता है और वेकेशन कब स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट ईयर फाइनल जो होता है वो फ्रेशर्स के लिए मिड जून तक होता है, मतलब मैक्स टू मैक्स मिड जून तक वो लोग घर चले जाते हैं, और वेकेशन एंड होती है हमारी एंड ऑफ अगस्त में। फ्रॉम मिड जून टू एंड ऑफ अगस्त देयर आर वेकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफएमजी के लिए पढ़ना कब बेस्ट है। फर्स्ट ईयर से ही एफएमजी के लिए पढ़ो, उस लेवल का मत पढ़ो कि आप रिवीजन आप बाद में फिफ्थ या सिक्स ईयर में करना, लेकिन आप प्लीज फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन अपने स्टार्ट रखना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यहाँ पर दिस इज व्हाट जहां पर आपका बेस बनता है इन मेडिकल कॉलेजेस। तो आई थिंक स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा थोड़ा करो। आई एम नॉट सेइंग कि डेली लेकर बैठे हो 3-4 घंटे पढ़ो, एक लेक्चर 2 या 3 दिन में कर लो मैक्स टू मैक्स, इतना कह सकती हूँ मैं। तो स्टार्टिंग ऑफ एफएमजी प्रिपरेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर और सीरियस हो जाना फ्रॉम थर्ड ईयर। नेक्स्ट इज फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फी स्ट्रक्चर के बारे में तो टेंशन फ्री हो जाओ, जब एडमिशन का टाइम होगा उस टाइम पर मैं फी स्ट्रक्चर की भी वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट इज एज एंड फ्रॉड से कैसे बचे, अगेन दिस क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज टेल मी हाउ कैन आई ऑब्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन नीट 2020। लेकिन सारा बेसिक ही होता है, 11th-12th का ही होता है। इवन मैंने अपनी 2024 में ही क्लास 12 कंप्लीट की थी, 2024 में ही मैंने नीट क्लियर किया था, एंड 2024 में ही मैं यहाँ पर आई थी, एंड माय नीट स्कोरिंग वाज 480। तो मैंने 11th-12th अच्छे से करी थी, बस 12th में मेरे 90 परसेंटाइल स्कोर था। तो 12th मैंने अच्छे से करी थी, और बीच में मेरे पास एक महीने का गैप था,
तो मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया, तो जो भी नॉलेज मैंने 11th-12th में गेन की थी वही जाकर सारा मैंने निकाल दिया पेपर पे। ये क्वेरी सबको होती है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं यहाँ आने से पहले इस चीज को लेकर। ये total number of intakes, like I have heard that 2025 there were more than 1400 students. That's true. Enroll in Samarkand State Medical University provide 200 degrees per year. So what about rest of the students? So what about rest of the student? Are they gonna expel them or they have to repeat the semester? लास्ट टाइम पर जब यहाँ स्टूडेंट्स आए थे, आई नो इनके पास 200 डिग्रीज थी एंड उस टाइम पर दे जस्ट फुलफिल द एवरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट। लेकिन इस ईयर से यहाँ पर स्टूडेंट ज्यादा हो गए हैं, लेकिन देर इज नो नीड ऑफ टेंशन, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पर विजिट करती है। तो इस चीज से टेंशन फ्री हो जाओ कि ऐसा एक्शन लेंगे कि बच्चों को जानबूझकर एक्सपेल करना, वो ये कभी नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो देयर इज अ रेपुटेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ऐसा हो सकता है कि इतने सारे सीबीटीज होते हैं, वो आपको 3 चांसेस देते हैं और अगर आप 3 चांसेस में भी उनको क्लियर नहीं कर पा रहे, 60% तो होती है क्लियर करने के लिए, अगर आप वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो ऑफकोर्स दे विल एक्सपेल तो खैर वो नहीं करते, ऑफकोर्स दे विल डू द सेमेस्टर बैक ऑफ द स्टूडेंट। एक्सपेल यहाँ पर नहीं होता, दे ये सिर्फ सेमेस्टर बैक करते हैं। तो अगर आप 3 सीबीटी नहीं क्लियर करोगे तो सेमेस्टर बैक ही होगा, बिकॉज यू आर डूइंग एमबीबीएस हियर, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। यू आर डूइंग एमबीबीएस हियर और अगर आपसे कोई चीजें रटी ही नहीं जा रही इतनी इजी, 1500 या 2000 क्वेश्चन, आई नो कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन इतनी गलती कि आप 60% से नीचे स्कोर कर रहे हो तो वो चीज तो फिर गलत है। यहाँ अगर आप आ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यू आर डूइंग एमबीबीएस, इट्स लिटरली अ ग्रेट लिटरेट डिग्री, तो एमबीबीएस आपको करना पड़ेगा। यू विल गोना बी अ फ्यूचर डॉक्टर, तो वो इतना इजी नहीं होता कि आप अब्रॉड में आ रहे हो बस पैसा दे रहे हो तो आपको सिर्फ डिग्री मिल रही है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये खामखा एक्सपेल करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ, इवन यहाँ आने से पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो मैं घर गई थी, तो मुझे भी यही डर था कि ऐसा ना हो कि ये सेम बैक कर दे। मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी ली थी, हमारी क्लासेस 8 को स्टार्ट हुई थी लेकिन मैं 21 सितंबर को आई थी, तो मुझे डर था कि ये ऐसा ना हो इसको ही बहाना बनाकर मुझे सेम बैक कर दे मेरा। मुझे बहुत डर था इस चीज का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और अगर होगा तो मैं एज अ सेफर साइड प्लान बी लेकर चल रही थी, बिकॉज आई हैव दैट अ बिग ऑडियंस ऑन यूट्यूब। तो मैंने सोचा था कि मैं सबको गाइड करूंगी कि इस यूनिवर्सिटी में ना आओ और अपनी इंडियन एजेंसी को कंप्लेन करूंगी। मैंने इवन चैट जीपीटी से हर गवर्नमेंट अथॉरिटी का नंबर लिया हुआ था कि एज अ सेफर साइड में ये चीजें करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने इजीली परमिशन लेटर दे दी और सारी एब्सेंटीज क्लियर कर दी। तो डोंट टेक एनी टेंशन, यहाँ पर आओ और आप अकेले थोड़ी हो, इतने लोग आपके साथ आएंगे। और मेंटली अच्छे से प्रिपेयर होकर आना, आपका माइंडसेट शुड बी क्लियर कि हाँ अब आप समरकंद में आ चुके हैं, अब जो है यही है, कोई डिस्ट्रैक्शन है कोई परेशानी है अब हमें खुद ही टैकल करनी है विदाउट एनी फैमिली। तो जब भी आप यहाँ पर आओ तो अपना माइंडसेट क्लियर रखना, और यहाँ आने के बाद अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आई एम हेयर, योर सीनियर, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और अगर इस चीज के बारे में आपको स्टिल एनी क्वेरी है तो आप मुझे डीएम करना इंस्टाग्राम पर, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आई चूज उज्बेकिस्तान ओवर एनी अदर कंट्री। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम ऑल द कंट्री मैं उज्बेकिस्तान में आई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फ्रॉम ऑल द उज्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी मैं समरकंद में आई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जहां पर मैं हूँ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। आई नो ताशकंद भी अच्छा है, लेकिन आई थिंक जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ मेरे लिए वो अच्छी है। एंड इफ यू आर फाइंडिंग फॉर एनी यूनिवर्सिटी कि उज्बेकिस्तान में कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस ताशकंद को दूंगी, देन समरकंद को। लेकिन मेरे लिए समरकंद इज बेस्ट, आई हैव नो रिग्रेट कि मुझे ताशकंद नहीं मिला, आई एम ओके। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कंसोल द पेरेंट्स कि हमें एमबीबीएस करना है उज्बेकिस्तान। तो देखो, पेरेंट्स को तो आप नहीं समझा सकते, क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स थे उनका स्टार्टिंग से ये माइंडसेट था कि बेटी को एमबीबीएस ही कराना है। तो स्टार्टिंग से ही मेरे पापा बोलते थे कि ये डॉक्टर बनेगी, तो उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और उसके बाद फिर वो मेरा भी डिजायर हो गया कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो पेरेंट्स का जो डिसीजन होता है वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लास्ट में वो नई फीस देनी है। देखो, मैं पर्सनली अगर बताऊं, अगर मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अब्रॉड नहीं भेजना तो वो फिट एंड फाइनल है, नहीं भेजना तो नहीं भेजना। स्टार्टिंग से उन्होंने सोच रखी थी कि एमबीबीएस करेगी, बाहर भेजना है, तो उन्होंने भेजा।
आई डोंट नो अबाउट योर पेरेंट्स कि वो कंसोल हो सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरे पेरेंट्स मुझसे कंसोल कभी नहीं हो सकते। अगर वो चाहते हैं कि बाहर जाएगी तो ठीक है, अगर वो नहीं चाहते कि नहीं जाएगी तो आई रेस्पेक्ट देयर डिसीजन कि नहीं जाना। तो पर्सनली मैं ये बताऊंगी, आई डोंट थिंक कि हम पेरेंट्स को कंसोल कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। वो उनका खुद का डिसीजन होता है। तो बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि मुझसे कंसोल नहीं हो सकते थे। उनका स्टार्टिंग से खुद का डिसीजन था कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, और यहाँ पॉसिबल नहीं हुआ तो बाहर भेजेंगे। तो उनका डिसीजन मेरे लिए बहुत अच्छा निकला, अल्लाह का शुक्र है कि पेरेंट्स का भी काफी सपोर्ट होता है इस चीज में। आई गॉट द मोस्ट सपोर्टिव पेरेंट्स। तो भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई एम फ्रॉम दैट फैमिली जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसमें लड़कियां छोड़ो, पढ़ाई के लिए आज तक लड़के भी बाहर नहीं गए। तो मेरा यहाँ पर आना, लिटरली आई एम द फर्स्ट गर्ल इन माई, मे बी इन माई ब्लड लाइन। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हिम्मत करके यहाँ भेजा है, तो अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव करके मुझे यहाँ से जाना है इंशाल्लाह। So that's all for today. Thanks for watching. If you are watching this and get any motivation, and if you have still have any question, you can comment down. Thanks for watching. Please do subscribe my channel. और अब मैं थक गई हूँ। Bye guys. अल्लाह हाफिज। और नहीं, आने से पहले कुछ लोग पूछते हैं कि अभी हम आ रहे हैं आपके लिए, कुछ लेकर आएंगे। कुछ मत लेकर आओ, बस दुआएं दे दो, दैट्स इनफ। बाय गाइस।